Hello everyone, welcome to the Teacher Tube Science online study channel. Today we will discuss a new chapter of NCERT Science class 9th, chapter number 9, Force and Laws of Motion. So let's start. First of all, what is force? Force is an external effort which may move a body at rest or stop a moving body or change the speed of a moving body, or it can change the direction of a moving body or change the shape and size of a body. So we can say that a force can change the following things, that it can change a moving body to stop, it can change the shape and size of a body, and it can change the direction of a moving body. So for example, here are given some pictures also to explain it clearly. First of all thing, effects of force, what a force can do. Force can move a body at rest. If a body is at rest, it can make it to move. For example, picture number 1, the car is at rest and the person is pushing it to move it. So he is applying force to move the car from one place to another place. So now the force is applying to change the object at rest, and it will bring it into motion, or it can change the place of the object. The second one, force can stop a moving body. Here you can see a goalkeeper is stopping a ball going to the goal post. So it is stopping a moving body, that is the body is a ball, football, so it is stopping. So with the help of a force, a moving body can be stopped. Third one, a force can change the speed of a moving body. Here you can see a cycle rider is cycling it. If he speed up the pedaling, the speed of the cycle also will increase. But if he stops the pedaling, the cycle will come to an stop. So when he pedaling the cycle, he is applying the force. Now the force is changing the position of the body or changing the speed of the cycle. Next here, force can change the direction of a moving body. Here you can see a batsman is playing a sweep shot. Here the ball is coming from other direction, but when he applies the bat and when the ball comes in contact with the bat, it moves its direction. So again the force is being used to change the direction of a moving ball. So moving body, for a moving body, its direction can be changed with the help of a force. Then the next, force can change the shape and size of a body. Here you can see a duff of wheat is given here. So when we apply a force, it can be changed into a chapati. Got it? It is changing the shape, and size also is being changed here. Next, if we are talking about the force, then it comes to balanced and unbalanced forces. So two types of forces are there. One is balanced force and the second one is the unbalanced force. So first of all, we will talk about the balanced forces. If two forces, you just see, when we compare the forces, then it must be more than two forces. It is required. So if two forces act on a body in opposite direction, यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट. सो अगर किसी एक बॉडी पर दो अलग अलग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से एप्लीकेबल हैं या काम कर रहे हैं, देन इफ द बोथ द फोर्सेस आर इक्वल, यानी कि इफ फोर्स F1 is equal to the force F2, then the resultant force acting on the body will be 0. So the movement of the object will not be seen. Such forces are called balanced forces.
Balanced forces cannot change the state of rest or motion of a body, because when we apply the force is cancelling the other force. If its quantity or its is equal to the other force, then it cancels the second force also. So these type of balances are called balanced force. Next is unbalanced force. If two forces act on a body in opposite direction in the same way as the balanced force, यहाँ बस इतना है, and if one force is greater than the other one, so here F1 is greater than the F2 force, then the resultant force is not equal to the zero. So resultant जो force होगा वो zero नहीं होगा, and in the result of this the body will be moved towards the force 1. Got it? So such forces are called unbalanced forces. Unbalanced forces changes the state of rest or change the state of motion of a body. Is that clear? Now, force of friction. Friction is very necessary for our daily life routine activities, and if there was no force or no force of friction, we wouldn't be able to move from one place to another place. So the friction is very important. Force of friction is the force which opposes the motion of an object over a surface. ये एक ऐसा फोर्स है जो एक सरफेस पर मूविंग करने वाली किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का अपोज करता है, विरोध करता है. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन. हमने ये पढ़ा है जब तक किसी हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि बॉडी पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा वो रुकेगी नहीं, है ना. सो नहीं रुकेगी तो यहाँ कैसे रुक गई? वाई दिस बॉल गेट्स इट्स जीरो पोजिशन और इट्स स्टॉप्ड पोजिशन? ये जस्ट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि जब ये रोल करती है, सो जो रोल करती है तो ग्राउंड और बॉल के बीच में जो सरफेस कनेक्ट हो रही है, सो वहाँ पर क्या काम करता है? एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है. ठीक है. इफ़ वी स्टॉप पैडलिंग ए बाईसाइकिल, यस करेक्ट, अगर हम एक साइकिल को पैडलिंग करना बंद कर देंगे, इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड कम्स टू ए स्टॉप ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ये स्टॉप पर आ जाती है. नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म मोशन इफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड. अगर किसी ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्स मूव कर रहे हैं, अगर बैलेंस फोर्स पे एक्ट कर रहे हैं और द बॉडी इज़ इन मूवमेंट, तो वो मूवमेंट में ही रहेगी, क्योंकि बोथ द फोर्सेस आर बैलेंस्ड एंड क्रॉसिंग ईच अदर, मीन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर और कैंसिलिंग ईच अदर. If an unbalanced force acts on a moving body, then its speed or direction of movement that will be changed. ओके अगर किसी बॉडी के ऊपर दो अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहे हैं, सो तो बॉडी का स्पीड भी चेंज हो जाएगा और उसका मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी चेंज हो जाएगा. इफ़ द अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिमूव्ड, और अगर किसी बॉडी पर अनबैलेंस्ड फोर्स जो वर्क कर रहे हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा, तो इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द स्पीड इट हैड एक्वायर्ड टिल देन. तो जब तक इसने जितनी स्पीड एक्वायर की है, ये उसी स्पीड के साथ में ऑब्जेक्ट जो है मूव करता रहेगा. फिर एक ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं गैलीलियो, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया इंक्लाइंड प्लेन के साथ में. इंक्लाइंड प्लेन जो ऐसे प्लेन हैं जिनका वन जो आर्म है वो 90 डिग्री पर रहता है, और अगर दोनों प्लेन ऐसे लिए जाएं जिनका जो ये एक्टिंग जो एंगल है वो सेम हो, तो जो इंक्लिनेशन इसका एंगल है वो सेम रहेगा. तो देखिए इन्होंने क्या बताया गैलीलियो ने, ये कह रहे हैं कि कोई बॉल अगर किसी हाइट से ड्रॉप की जाएगी तो ये उसी हाइट तक वापस पहुंचने की कोशिश करती है, अनलेस और अनटिल इसके ऊपर किसी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा हो.
ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है तो फिर तो इसको हम कहीं भी रोक सकते हैं, बट इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इट विल एक्वायर द सेम हाइट फ्रॉम वेयर इट वाज ड्रॉप्ड। ओके, इफ वी डिक्रीज द एंगल, अगर हमने इंक्लिनेशन का जो एंगल है वो डिक्रीज कर दिया तो क्या होगा, ये इतनी हाइट, सो ये बॉल तब तक मूव करेगी, उतनी डिस्टेंस कवर करेगी जब तक कि उसी हाइट तक ना पहुंच जाए, इसी हाइट तक इसको पहुंचना होगा। ठीक है। सो अगर हम इसको जो इंक्लिनेशन है इसको बिल्कुल जीरो कर दें और इसको वेरी हॉरिजेंटली पैरेलल कर दें तो क्या होगा, ये बॉल तब तक मूव करती रहेगी जब तक कि इसकी इस हाइट तक ना पहुंच जाए, और इसीलिए ये कंटिन्यू मूव करती रहेगी, बट एक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इस पे काम कर रहा है। अगर इस फ्रिक्शन ऑफ फोर्स को रिमूव कर दिया जाए और आइडियल कंडीशंस रखी जाएं तो ये क्या होगा, उतनी हाइट तक पहुंच जाएगी जितनी हाइट से इसको ड्रॉप किया गया था। गॉट इट, फ्रॉम एनी डिस्टेंस। गॉट इट। नेक्स्ट, इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन किया है। व्हेन ए मार्बल रोल्स डाउन फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज। पहले जब इसको गिराया जाएगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एंड व्हेन इट गोज अप ऑन द सेकंड इंक्लाइन प्लेन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। वेरी सिंपल थिंग, ऊपर जाएगा तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको मूव करने से रोकेगा, एंड दैट इज वाई इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इफ द इंक्लिनेशन ऑफ बोथ द प्लेन्स आर इक्वल देन द मार्बल विल रीच द सेम हाइट विच इट रोल्ड डाउन। तो यही बात हम कर चुके हैं, उसी हाइट पर ये पहुंच जाएगा। इफ द इंक्लिनेशन ऑफ द सेकंड प्लेन इज डिक्रीज्ड, यानी दूसरे प्लेन का अगर इंक्लिनेशन को हम डिक्रीज करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, इसको कम कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो क्या होगा, द मार्बल विल ट्रेवल फॉर एवर। जहाँ ध्यान से देखिए, द मार्बल विल ट्रेवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट फ्रॉम वेयर इट वॉज ड्रॉप्ड। So an unbalanced force is required to change the motion of the marble, but no force is needed to sustain the uniform motion of the marble. यहाँ ध्यान देने की बात है, अगर इस मूविंग मार्बल के मोशन में कोई चेंज करना है तो हमें अनबैलेंस फोर्स को अप्लाई करना होगा, बट इफ़ वी वांट दैट the marble should continue to move forward then we have to remove all types of forces, or we need not to apply any kind of force. So here it comes, the Newton's first law, very important, and for class 9, 10, 11, 12, and whenever you are talking about science you will be come across the first law, all the laws of motion, and Newton was the great scientist who has given this rule. So first law says an object remains in a state of rest. ध्यान से सुनना, if an object is in a rest state or in a state of rest or in uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. ये देखिए कुछ यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट, और हम इसको इसी वर्ड्स में देखें तो एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इन ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless and until compelled to change that state by an applied force. Yes, correct. जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, इसकी जो स्टेट है whether may be a rest state or may be a uniform motion state, that will be continue. Okay, so this was the first law of motion. Now there is one term that is called inertia. तो हम देखते हैं व्हाट इज़ इनर्शिया। द नेचुरल टेंडेंसी, ये नेचुरल फिनोमिना है, सभी जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबके साथ ऐसा ही है। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू रिमेन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इन ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। ध्यान से देखें कि ऐसी एक टेंडेंसी किसी भी ऑब्जेक्ट की है, ये सभी ऑब्जेक्ट की ये टेंडेंसी है कि अगर वो रेस्ट में है तो अपनी रेस्ट की पोजीशन को कंटिन्यू रखना चाहता है, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो अपनी यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखना चाहता है।
फॉर एग्जांपल जैसे ट्रेन हमने मूव करवा दी, एक बार ट्रेन मूव करने के बाद जब वो मूव करती है रेल पर, तो उसको रोकने के लिए हमें आउटर एक्सटर्नल फोर्स यूज करना पड़ता है, और उसके लिए एक्स्ट्रा वर्क हमें करना पड़ा, जिससे जो उसका व्हील है और जो ब्रेक है उनके बीच में फ्रिक्शन ऑफ फोर्स काम करेगा और वहाँ पर बहुत हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो एक्सटर्नल एफर्ट हमें लगाना पड़ा उसकी जो यूनिफॉर्म मोशन है उसको रोकने के लिए, या जब उस एक रेस्ट में जो कोई ट्रेन खड़ी है या कोई गाड़ी है तो उसको मूव करवाने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। सो फर्स्ट ऑफ लॉ को, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। यहाँ पर एक थोड़ा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, एक कॉइन और एक कार्ड। जब कार्ड और कॉइन एक साथ रखे हुए हैं, नीचे गिलास रखा है वाटर का, और क्या करेंगे, जब हम एकदम से इस कार्ड पर फोर्स अप्लाई करते हैं, टिक करते हैं, तो क्या होगा कि जो कार्ड है उसको, चूंकि बिकॉज वी आर फोर्सिंग इट, सो वो तो अपनी पोजीशन से मूव कर जाएगा, लेकिन जो कॉइन है उसको फोर्स ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, इसलिए वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखना चाहता है। सो इट फेल डाउन इन द गिलास इटसेल्फ। सो वो वहीं अपनी पोजीशन बरकरार यहीं से ही अपनी पोजीशन रखता है, और जैसे ही ये इसके नीचे से निकल के जाता है, इसको वापस नीचे गिर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनर्शिया के, देखिए। इफ ए स्ट्राइकर हिट्स ए पाइल ऑफ कॉइन्स ऑन ए कैरम बोर्ड, the lowest coin moves out and due to the inertia of rest the other coins fall down. So पाइल से इस तरह से बनाते हैं हम, ऊपर नीचे रखते हैं, और एक स्ट्राइक जब इसको करते हैं तो ये नीचे वाला जो कॉइन है, एक नीचे वाली जो कॉइन है वो ही निकल के चला जाता है, और ऊपर वाले जो कॉइन है वो नीचे आ जाते हैं, बस आगे मूव नहीं करते हैं, ठीक है। ये बहुत बार हम देखते हैं, जनरल फिनोमिना है। If a coin placed on a playing card over a tumbler is flicked with the finger due to the inertia of rest, the coin falls down into the tumbler. ये हमने पीछे देखा, यहाँ पर ये टम्बलर में इस तरह से गिर जाता है, ठीक है। When we travel in a car and the driver applies the brake suddenly, we tend to fall forward due to the inertia of motion. जब हम कार में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, सो होता क्या है कि जैसे हम कार में बैठे हैं या किसी बस में बैठे हैं, तो वहाँ पर हमारी जो बॉडी है वो सीट, कार की सीट के साथ या ट्रक की सीट के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। सो हमारी वॉल बॉडी एक मूविंग पोजीशन में आ जाती है। तो जब कार पे अचानक ब्रेक लगाया जाएगा तो होगा क्या, जो कार के टच में या ग्राउंड के टच में जो पार्ट ऑफ द कार है और जो बॉडी का जो पार्ट कार के टच में है वो ब्रेक के साथ रुकना चाहता है, लेकिन जो अपर पार्ट है, जो फ्री पार्ट हमारा बॉडी का है, फ्री पार्ट, ये क्या है, अभी भी जो मूवमेंट वाली जो पोजीशन है उसको कंटिन्यू रखना चाहता है, उसका अपोज करता है, विरोध करता है, इसलिए आगे की तरफ ये बेंड हो जाता है, ठीक है। इन द सेम वे अगर हम कोई खड़ी गाड़ी है एकदम से और वो चल पड़ती, जैसे घोड़ा है, घोड़ा एकदम से चलता है तो हम गिर जाते हैं पीछे की तरफ, उसमें क्या होगा कि जैसे ही जो हॉर्स है आगे की तरफ मूव करेगा तो उसकी बॉडी के टच में जो हमारा पार्ट है वो तो क्या होगा, मोशन में आ जाएगा, लेकिन जो अपर पार्ट है वो अभी भी उसी पोजीशन में रहेगा। तो जैसे ही ये आगे पोजीशन में, जो निचला पार्ट आगे की तरफ जाता है बॉडी का, सो अपर पार्ट जो है वो वहीं रहता है, इसलिए हम पीछे की तरफ झुकते हैं। गॉट इट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर कई बार देखिए अनफॉर्चुनेटली बट वी आर टॉकिंग एज ए साइंस, तो इसको ध्यान से समझिए। कोई जब गाड़ी किसी अनमूविंग चीज़ से या मूविंग कोई ऑब्जेक्ट्स के इस तरह से टक्कर करती है या स्ट्राइक करती है, तो होगा क्या, इसके स्पीड में चेंज आएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट कोई स्टिल ऑब्जेक्ट है सो इसके मूवमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। बहुत ज़्यादा चेंज आने की वजह से इसका निचला पार्ट जो मूवमेंट कर रहा था उसके साथ में ही जो ड्राइवर है या अदर जो पैसेंजर इसमें बैठे हुए हैं उनका अपर बॉडी पार्ट्स भी क्या कर रहे हैं, गाड़ी के साथ मूवमेंट कर रहे हैं। बट व्हेन
दिस कार इज स्ट्राइक्स विद दिस स्टील पिलर, सो क्या होगा, कार तो वहीं रुक जाएगी, लेकिन हमारी बॉडी का जो फ्री पार्ट है, फ्री जो पार्ट है वो अभी भी मूव करना चाहता है ना, इनर्शिया है, लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से, सो वो आगे की तरफ मूव करता है, और इसी वजह से जैसे ही कार यहाँ टकराएगी तो हम आगे की तरफ बहुत तेज़ी के साथ झुकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नॉर्मल एग्जांपल्स हैं। अब देखो जो इनर्शिया है उसके किस पे डिपेंड करता है, हाउ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास। हियर इट इज, अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट and a body in motion continues to be in motion. This property of body is called inertia. ये हम पहले पढ़ चुके हैं। The inertia of a body is measured by the magnitude of force required to change the state of a body. किसी बॉडी के इनर्शिया को चेंज करने में जितना फोर्स हमें यूज करना पड़ रहा है वही क्या है, उसमें क्या यूज हो रहा है, मास कहलाएगा। The force required to change the state of a heavier body is more than the force required to change the state of a lighter body. Okay, so this is because the mass, किसकी वजह से, ये mass की वजह से है। Mass of the heavier object is more than the mass of the lighter object. So the mass of a body is a measure of its inertia. So mass क्या है, inertia है, किसी भी बॉडी का inertia है। मास और वेट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देन हियर कम्स मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। सो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। So we can write it, momentum is equal to mass of a body and the velocity of the body. So we can write it, the momentum is written with P and mass is written, means shows with the M, and velocity shown by V. So where P is the momentum of a body, M is the mass of the body, and V is the velocity of the moving body. If a body is at rest, अगर कोई बॉडी जो है रेस्ट पे है, सो वी विल बी इक्वल टू ज़ीरो, सो वेलोसिटी इज ज़ीरो एंड सो इट्स मोमेंटम इज ऑल्सो ज़ीरो। तो इसका मोमेंटम की क्या हो जाएगी, फॉर एग्जांपल अगर ये ज़ीरो है, वेलोसिटी ज़ीरो है, तो ये भी ज़ीरो होगा, तो मोमेंटम भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और वी कैन राइट इट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको दो तरीके से लिखा जाता है, ये आप बहुत निर्मल चीज़ है, आगे ध्यान दें। कुछ एग्जाम्पल यहाँ देखिए, अ ट्रक मूविंग एट ए वेरी लो स्पीड कैन किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ बिकॉज ऑफ द हैवी मास ऑफ द ट्रक। अगर कोई पर्सन जो है हैवी ट्रक के सामने, चाहे वो ट्रक थोड़ी सी स्पीड में ही चल रहा है फिर भी उसके सामने आ जाता है, तो उसका मास जो ज़्यादा होने की वजह से उसके ऊपर मोमेंटम ज़्यादा काम करेगा और इस वजह से आदमी की डेथ हो जाती है। इन द सेम वे ए बुलेट, अब यहाँ देखो बुलेट में जो है मास बहुत कम है, मास उसका बहुत कम है, मास बुलेट ऑफ ए स्मॉल मास when fired from a gun can kill a person because of the large velocity. इसकी क्या है, velocity ज़्यादा है। सो यहाँ मास ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर velocity ज़्यादा है, और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन जो आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो हाई आएगा, और हाई प्रोडक्ट की वजह से ही इसका जो मोमेंटम है वो ज़्यादा होगा, और इस वजह से उस पर एक्टिंग फोर्स ज़्यादा काम करेगा और डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहे हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जस्ट कीप इन माइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ध्यान दीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो चेंज करेंगे तो उसके चेंज की जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, उस पर अप्लाई किए गए फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है, एंड दैट इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है उसी डायरेक्शन में वो एप्लीकेबल होती है। सो इसको हम मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन करते हैं, किस तरह से इनको शो करते हैं मैथमेटिकली सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, वो यहाँ पे देखिए। फॉर एग्जांपल
take an object of mass m is moving along a straight line with initial velocity u and is accelerated to the velocity v in a time of t seconds by applying a force F. Then the initial momentum P1 will be equal to m into u, because m is the mass and initial velocity is u. So we will multiply mass into the velocity. So we will get equation number 1. Final momentum after the acceleration of the velocity, we will get P2 is equal to m into v. Got it? Now the change of momentum, is proportional to the applied force. ठीक है, अब मोमेंटम में चेंज देखिए, मोमेंटम में चेंज P2 माइनस P1 होगा, ये P2 माइनस P1 है, ये किसके इक्वल है? चेंज इन मोमेंटम जो है देखिए किसके? अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा. सो विल बी प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विल बी प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. ठीक है. सो लेकिन ये चेंज इन मोमेंटम ओनली है और यहाँ पर बात आ रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो अभी इसको अप्लाइड फोर्स के साथ में हम नहीं लिखेंगे, आगे लिखेंगे. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डिफरेंस ऑफ फाइनल वेलोसिटी एंड initial velocity divided by the time t. Okay, and here v minus u upon t will be called as acceleration, and that is written as like this. Okay, so we can write here rate of change of momentum, that is equal to force F proportional to m into a. ये आगे किया है, देखिए आगे देखते हैं. The rate of change of momentum is equal to the applied force, so the applied force F will be proportional to m into v minus u upon t. So F will be equal to, when we will remove the proportional symbol, we will bring a constant, that is k into m into v minus u upon t, and we can write it like this, because v minus u upon t, v is equal to acceleration a. So F is equal to k into ma, where k is a constant of proportionality. Okay, k जो है ये proportionality का एक constant है. अगर हम इसको 1 के इक्वल करें कि k is equal to 1, then force acting on applied on a object will be equal to the mass of the object and the acceleration of the object. The standard international unit of mass is kilogram and the accelerations unit is meter per second square. So the unit of force will be written as kilogram meter per second square, and that is called as Newton, and its symbol is capital N. Now Newton's third law of motion. Okay, third law of motion says to every action there is an equal and opposite reaction, and they act on two different bodies. देखिए ध्यान दीजिए, हर एक्शन की एक रिएक्शन होती है. ठीक है, फिल्मों में डायलॉग सुना होगा आपने. सो वो इसको इस तरह से देखिए, एवरी एक्शन हैज़ एन ऑपोजिट रिएक्शन. सो यहाँ इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल होगी. ठीक है, रिएक्शन होगी तो कैसी होगी? इक्वल, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी. और ये दोनों जो है एक्शन और रिएक्शन दोनों डिफरेंट बॉडीज़ पर काम करेंगी. एक्शन अलग बॉडी पे काम करेगा और रिएक्शन जो है अलग बॉडी पर काम करता है. टू प्रूव दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, हम देखते हैं. चलो इसको प्रूव करते हैं कि एक्शन और रिएक्शन जो हैं दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं और अपोजिट होती हैं. लेट्स प्रूव इट. टेक टू स्प्रिंग बैलेंसेस ए एंड बी. ये आगे दिखाया है मैंने. यहाँ पे एक बैलेंस ले ली ए और एक बैलेंस ले लिया बी. दोनों बैलेंस ले ली हमने. देखिए कनेक्टेड टुगेदर, दोनों को कनेक्ट कर लिया.
फिक्स द स्प्रिंग बैलेंस बी टू ए रिजिड सपोर्ट, इसको किसी दीवार के साथ में या किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ में हमने क्या कर दिया, अटैच कर देंगे. देन व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड बाय पुलिंग द फ्री एंड, एक साइड जो फ्री एंड है ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस ए, देखो यहाँ पर स्प्रिंग ए है, इसका जो फ्री एंड है, एक एंड तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया बैलेंस बी के साथ में, और जो फ्री एंड ऑफ ए बैलेंस है उसको इस तरह से हम पकड़ेंगे. वापस चलिए, सॉरी. बोथ द स्प्रिंग बैलेंसेस शो द सेम रीडिंग. वाई दिस सो? दोनों स्प्रिंग में देखिए, हम तो किसको किस पे फोर्स कर रहे हैं, वी आर फोर्सिंग ऑन ए ओनली, द बैलेंस ए. सो जो यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है 100 न्यूटन की, वो क्यों आ रही है भाई? इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो बी को अपनी तरफ पुल कर रही है. सो इन द सेम वे बी इज पुलिंग द ए विद द सेम फोर्स, और सेम फोर्स का मेजरमेंट ये यहाँ पर है 100 न्यूटन, और ये भी 100 न्यूटन. ठीक है. This shows that the force exerted by the spring balance A on B is equal but opposite in direction to the force exerted by spring balance B on A. The force exerted by spring balance A on B is action. ध्यान से देखिए, जो फोर्स हम A पर लगा रहे हैं और A जो B पर लगा रही है वो एक्शन है, एंड द फोर्स exerted by the spring balance B on A is its reaction. सो एक्शन का रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है और दोनों इक्वल हो रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट, सम एग्जांपल्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, इट एक्सर्ट अ फॉरवर्ड फोर्स. ठीक है, ये एक्शन हो गया, फॉरवर्ड फोर्स है, ये तो एक्शन हो गया क्योंकि यही तो काम कर रहे हैं, मेन काम तो यही है, ऑन द बुलेट. एंड द बुलेट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. अब देखो, बुलेट जब आगे की तरफ मूव कर रही है, इट एक्सर्ट ए फोर्स on the gun in opposite direction and equal on the gun, and the gun is recoiled. इसी वजह से गन जो है पीछे की तरफ मूव करती है. ठीक है. और देखिए, when a sailor jumps out of a boat, for example this sailor is jumping out from the boat to the bank of the river, then he exerts a backward force. वो यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, देखिए यहाँ पे फोर्स लगाएगा, तो यहाँ से फोर्स लगाएगा तो यहाँ पर जो बोट है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी. ठीक है. तो इससे रिएक्शन होगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा. तो होगा क्या, देखिए एक्शन क्या है, ये पीछे की तरफ जाएगी, और रिएक्शन क्या है, वो इसको आगे की तरफ फोर्स करेगा. ठीक है. When, और एग्जाम्पल देखिए, when an air filled balloon is released, the force of air coming out of the balloon exert an equal and opposite force on the balloon and it moves forward. ठीक है. देखिए यहाँ पे एक बैलून लिया हमने, इसको स्ट्रिंग से बांधा, यहाँ इसके एयर को इस तरह से हमने बैलेंस किया, इस तरह से मैनेज किया कि एयर जो है थोड़ा थोड़ा यहाँ से पास होगा. तो क्या होगा, एयर का एक्शन तो इधर है लेकिन वो रिएक्शन किधर करेगा, इस तरफ. ठीक है. सो एक वीडियो के थ्रू हम इसको अच्छे से समझेंगे. Today we're going to demonstrate Newton's third law of motion, which says every action has an equal and opposite reaction. It's the principle that sends rockets to the moon. If you want to try this at home, this is what you need. When I release my fingers, air pushes out of the balloon. That's our action. Our reaction is that the balloon moves with the same force in the opposite direction. If you want to learn more about Newton's third law of motion or ask me a question, check out scienceofseasons.com. Got it? ठीक, ओके. You got it? ये एक्टिविटी आपकी बुक में है,
आप इसे घर पे ट्राई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल देखिए। व्हेन ए रॉकेट इज फायर्ड द फोर्स ऑफ बर्निंग गैसेस कमिंग आउट, ये एक्शन है, एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द रॉकेट। देखिए यहाँ पर इसमें गैसेस जो हैं वो बर्निंग गैसेस जो है बाहर आती हैं, तो इस तो रिएक्शन हो गया, एक्शन हो गया इसका, और एक्शन की वजह से ये बाहर जब आएगी तो एक फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट करेंगी, और इस फोर्स के एक्सर्ट फोर्स की वजह से ही ये आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, ये भी एक्शन और रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सो ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा, हियर आई थिंक कंटिन्यू रखना है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट, ये लॉ क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो रूल है, जो लॉ है, वो क्या कह रहा है, द सम ऑफ मोमेंटा, मोमेंटा इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मोमेंटम, the sum of momenta of two objects before collision is equal to the sum of momenta after collision provided there is no unbalanced force is acting on them। ठीक है, it means यानी टक्कर से पहले का जो टोटल मूवमेंट है, मोमेंटम है, वो टक्कर के बाद के टोटल मोमेंटम के इक्वल होता है। This means that the total momentum of the two objects is unchanged and we can say it is conserved by the collision। So if we take two balls A and B of masses MA and MB are traveling in a straight line with initial velocity UA and UB. Initial velocity of ball A is UA and the ball B is UB. And if UA is greater than UB, then only the collision will be no. This UA is greater than UB, then only there will be a collision. Otherwise, if UA is less than UB, then there will be no collision, never. Got it? Okay. The two balls will collide with each other during collision at a time t. Ball A exert a force of FAB on ball B, and the same way the ball B exert a force BA on ball A. If the last or the final velocity of ball A is shown as VA and VB for the ball B are the velocities of balls A and B after collision, then the momenta of the ball A before and after collision will be written as ये before the collision और ये होगा after the collision. These momenta for the ball A and the momenta of the ball B are written as MB UB and then MB UB. This is before collision and this one the after the collision. So change in momentum of ball A during the collision will be written as like this. So ये बाद का और ये पहले का collision momentum है. देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए, अब रेट ऑफ चेंज के लिए हमें टी और अप्लाई कर देना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, एम जो कि कॉमन है, कॉमन होने की वजह से इसको हम बाहर ले लेंगे और यू को अंदर रख लेंगे एंड टी इज डिवाइडेड बिकॉज द रेट ऑफ चेंज। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल बी ड्यूरिंग कोलिजन विल बी शोन एज लाइक दिस। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी, देखिए अब ये बॉल ए के लिए था और बॉल बी के लिए हम किस तरह से रखेंगे चेंज ऑफ मोमेंटम में, और फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये इस तरह से हम इनको रखेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स ए बी एक्सर्टेड बाय बॉल ए ऑन बॉल बी इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स एफ बी ए एक्सर्टेड बाय बॉल बी ऑन बॉल ए। सो देखो फोर्स एफ ए बी जो है वो बॉल ए के द्वारा एक्सर्ट किया है बॉल बी पर, एंड बॉल फोर्स एफ बी ए जो है एक्सर्ट किया गया बॉल बी के द्वारा बॉल ए पर। सो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, ये न्यूटन्स लॉ कहता है। अब देखिए, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ए बी का वैल्यू यहाँ पे है, ये रखा देखिए। सो एफ ए बी को हम इस तरह से लिखेंगे एम ए इंटू वी ए माइनस वी यू ए अपॉन टी,
और जो एफ बी है इसको हम ऐसे लिखेंगे, ओनली द सिंबल इज चेंज, माइनस सिंबल विल बी हियर एंड वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि टी जो है टी से कैंसिल हो जाएगा, ये टी से कैंसिल हो गया, बच गया क्या, एम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे सामने जो नंबर्स आएंगे वो इस तरह से होंगे। अब हमने क्या किया, एक साइड में u वाला रखा, एक साइड में v वाला रखा, यानी कि कोलिजन से पहले वाला एक साइड में, कोलिजन के बाद में दूसरे साइड में, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं हम, टक्कर से पहले का टोटल मोमेंटम ये हो गया दोनों बॉल का, और ये तो टक्कर के बाद का टोटल मोमेंटम हो गया, ठीक है। सो द मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन। गॉट इट? दिस वाज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दैट्स ऑल। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप टीचर ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू very much.